Hello friends, hope you are good. This is our lecture number second of unit number first, that is safety system. In this first unit, we are going to start our very first component, that is brake systems. So let's get started with this session. In this session, we are going to look into the two main concepts. The first one is function, necessity and classification of brakes. Then we are looking into the principal construction working of disc brake and drum brake. So let's get started. So first thing first, the definition of the brake system. Okay, brake is one of the most important control of the vehicle. As you know that it is very common sense. This is a combination of some interactive parts. It absorbs energy from the moving parts and slow down the vehicle with the help of frictions. So here we are using the friction funda for reducing your vehicle's movement, or stop its movement or halt its movement. Okay, so these are the some functions of braking systems. So every vehicle has its own braking system to stop the vehicle. Below I mentioned that generally used braking system in automobile. आने वाले लिस्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि आपके अलग अलग ब्रेकिंग सिस्टम्स के कैसे अलग अलग उसे क्लासीफाई किया जाता है. उसके बाद देखते हैं कि ब्रेक का फंक्शंस और नेसेसिटी क्या है. एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द ब्रेक सिस्टम इज टू स्टॉप द व्हीकल विद इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, एंड हेंस this is done by the converting the kinetic energy of the vehicle into the heat energy which is dissipated into the atmosphere. तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपका वो है मोमेंटम. जैसे आपकी व्हीकल का जो मोमेंटम होता है उसे स्टॉप करने के लिए उस मोमेंटम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और एनर्जी में, है ना. यही थर्मोडायनेमिक का लॉ कहता है ना कि आपको एक एनर्जी को वैनिश करने के लिए दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है हमें किसी ना किसी अदर फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वो अदर फॉर्म होता है यहाँ पे हीट एनर्जी. तो जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा था कि फ्रिक्शन का यूज़ होता है यहाँ पर. तो और ये जो हीट जनरेट हो रही है इसको आपको डिसिपेट भी करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में एज अर्ली एज पॉसिबल, वरना क्या होगा आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो जाएगा, जो कि उस ब्रेकिंग सिस्टम का फेल्योर बनने का मेन कॉज हो जाएगा. So there are some types of automobile braking systems. Let's see one by one. The brake system in an automobile can be classified into these categories. The first category is mechanical brake. As its name suggests, the funda used here is mechanical type. Okay. Also, the mechanical type is also called as a drum brake type system. Then we have a disc brake system. Then we have a hydraulic braking system. Then we have air braking system. Then we have the combination of hydraulic and air assisted brake system. Okay, the combination of hydraulic and air both. And also we have to look into the hand brake system, or this system is used for your parking brake systems. So these are the few systems 1 2 3 4 5 and 6. In upcoming 5 to 6 lecture we are going to cover these all braking systems. So let's start with this mechanical brake, though the first classification. It is also known as a drum brake system. So the mechanical brake is used in small power automobiles like scooters, your motorcycles and some modern vehicles also. The figure of this mechanical braking systems is shown in this illusion. Please note this figure. So here you can see there are some linkage between this enclosed between this drum. So that's why it is called as the drum brake systems. So the outer periphery is called as drum. In this you can see over here the brake drum. In that we have major 3 to 4 components. The first important component is anchors, and then we have cam over here, then we have brake linings, and we have brake shoes. So let's see how it works. So as we have to stop this drum which is your attached to your wheels, so for that purpose you have to make a friction linings over here.
सो जैसे भी ये अब ब्रेक ड्रम को आपको स्टॉप करना है तो किसी फ्रिक्शन के वजह से आपको इसको स्टॉप करना पड़ेगा, फ्रिक्शन का फंडा यूज़ करना पड़ेगा। तो इस फ्रिक्शन के फंडा के यूज़ करने के लिए यहाँ पे दो मैकेनिकल लिंकेज प्रोवाइड किए गए होते हैं, इसे कहते हैं ब्रेक के शूज़। ओके, ब्रेक शू। सो ये जैसे कि ब्रेक शू आपका जो इनसाइड एनक्लोज दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये जैसे ही एक बाहर आउटवर्ड मोमेंट करेगा अगेंस्ट दिस ब्रेकिंग लाइनिंग्स, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन जनरेट होगा, उस वजह से ये बाहर का ब्रेक ड्रम है वो स्टॉप होने की कोशिश करेगा, वहीं पर रुक जाएगा ड्यू टू द फ्रिक्शन। सो जैसे ही मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, देखो ये जो ब्रेक शू है जैसे ही बाहर एक्सटेंड होगा उसके बीच में ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है ये पुश अगेंस्ट पुश करेंगे ब्रेक ड्रम के। सो ये अल्टीमेटली आपका ब्रेक ड्रम जो है वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है, इस ब्रेकिंग शू को मैं इनसाइड क्लोज कर रहा हूँ और इसकी मूवमेंट मैं आउटसाइड कर रहा हूँ। तो इस पे डिपेंड करता है आपका ब्रेक ड्रम जो है वो दो टाइप का कैटेगरीज होगा, उसका एक दो सब टाइप होगा, एक है इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक और दूसरा है एक्सटर्नल एक्सपांडिंग ब्रेक। तो जैसे कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्रेक शू को एक्सटर्नल एक्सपांड कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सटर्नली एक्सपांड कर रहा हूँ। और इसी को मैंने अगर व्हील ड्रम को अंदर ला लिया और ये ब्रेकिंग लाइनिंग को आपको बाहर से फिक्स कर दिया तो क्या होगा, इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक्स। सो मैकेनिकल ब्रेक के दो टाइप्स है, सब टाइप्स है, एक इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक्स और दूसरा है एक्सटर्नल एक्सपांडिंग ब्रेक्स और इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक्स। So these are two main categories of mechanical drum brake system. So here you can see the actual image of drum brake system. अब इस सिस्टम में देखिए आपका जो एक्चुअल ड्रम है वो नहीं बताया गया है, सिर्फ अंदर की असेंबली बताई गई है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हाफ सेक्शन में ये है आपके फ्रिक्शन शूज़। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक लिंकेज फिक्स होती है अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। तो आपका ये जो है मोमेंट, ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ये पार्ट, इसे कहते हैं कैप। 1 सेकेंड, ये वाला जो है आपका कैप सिस्टम है। जैसे ही मैं इसे एक मैकेनिकल लिंकेज से रोटेट करूँगा तो ये इसके अगेंस्ट घूमने लग जाएगा और वो ये क्या करेगा, इसे दोनों शूज़ को आपको बाहर पुश करेगा, मतलब एक्सटेंड करेगा। उस वजह से ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है यहाँ पर ये टच हो जाएंगी आपके ब्रेक ड्रम को और अल्टीमेटली आपका ब्रेक ड्रम स्टॉप हो जाएगा। आपका जैसे ही ब्रेक ड्रम स्टॉप होगा वैसे ही आपका व्हील्स स्टॉप हो जाएगा। So as the brake pedal is pressed, cam rotates, which pushes the brake shoes outward, and hence brake lining provides on the outer surface of the shoes rub against the rotating the drum, and hence slow down the or stops the vehicle. So because the drum is connected to the wheels, because this drum is connected to wheels, जैसे मैंने बताया, जैसे ही आपका कैम रोटेट होगा, जैसे ही आप ब्रेक पेडल आपका प्रेस करोगे ये कैम क्या होगा, रोटेट होगा। जैसे ही रोटेट होगा आपके फ्रिक्शन लाइनिंग को फ्रिक्शन शूज़ को ये एक्सटर्नली एक्सपांड करेगा। अब इस फ्रिक्शन शूज़ पे फ्रिक्शन लाइनिंग होने के वजह से ये फ्रिक्शन लाइनिंग आपकी टच करेंगी ब्रेक ड्रम को, और ब्रेक ड्रम क्योंकि आपका व्हील से कनेक्टेड है तो वो भी उसको अल्टीमेटली व्हील को स्टॉप कर देगा। सो एक जनरल फंडा है ये जो कि मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम में यूज़ किया जाता है, इसे हम ड्रम ब्रेक सिस्टम भी कहते हैं। इसके दो सब कैटेगरीज है, एक है इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक और दूसरा है एक्सटर्नल एक्सपांडिंग ब्रेक। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट टाइप, डिस्क ब्रेक। सो द डिस्क ब्रेक इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल एंड द कार। व्हेन द पेडल इज pressed, piston pushes the pad by the pressure of the hydraulic fluid. The diagram is shown here. देखिए पहले कैटेगरी में हमने प्योरली मैकेनिकल टाइप ब्रेकिंग सिस्टम देखा था, यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोलिक टाइप। ठीक है, इस डिस्क ब्रेक सिस्टम में क्या यूज़ कर रहे हैं आप, हाइड्रोलिक। अब हाइड्रोलिक जहाँ पे आएगा ऑब्वियसली वहाँ पे पास्कल लॉ आएगा आपका, तो यहाँ पर पास्कल लॉ का फंडा यूज़ किया जाता है। आप शायद इस फिगर को ना समझ पाओ तो पहले हम ये दूसरे वाले फिगर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक्सल, व्हील का एक्सल जिस पे ये डिस्क माउंट किया गया है। ओके, अब आपका अल्टीमेट एम क्या है, इस डिस्क को आपको स्टॉप करना है। तो इस डिस्क को स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पर एक असेंबली फिक्स करते हैं। इस असेंबली को कहते हैं
मास्टर सिलेंडर। इस मास्टर सिलेंडर के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेट हाइड्रोलिक सिस्टम होती है और उसके अंदर कुछ हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा हुआ आता है, जो कि इस ब्लैक कलर के आपको जो ये ब्रेक पैड्स दिख रहे हैं, इस ब्रेक पैड्स को पुश करता है इस डिस्क के ऊपर। तो ऑब्वियसली इस ब्रेक पैड और इस डिस्क के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, उस वजह से ये डिस्क आपका स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही आपका डिस्क स्टॉप होता है, अल्टीमेटली आपका व्हील भी स्टॉप हो जाएगा। अब पहले वाली फिगर पे आइए, तो ये जो ब्लैक कलर के शूज़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर के पैड्स, ओके। और इसके बीच में है आपका एक डिस्क। तो जैसे ही आपके ये फ्रिक्शन पैड्स आप इस डिस्क के अगेंस्ट प्रेस करते हो, दोनों साइड से इसे पुश करते हो, तो आपका डिस्क स्टॉप हो जाएगा। So these friction pad rub against the rotating disc, which convert to the wheel of the vehicle and thus braking takes place। तो आपका जैसे ये फ्रिक्शन पैड रब किया जाएगा रोटेटिंग डिस्क पर, तो आपका व्हील जो है वो स्टॉप हो जाएगा। And as the pedal is released, the friction pad returns to its original position between the pressure and the hydraulic fluid is reduced। तो ये दो मेन हमने आज ब्रेक सिस्टम देखी, पहला देखा डिस्क और दूसरा देखा ड्रम, ओके। दोनों में फ़र्क ये है, पहला वाला जो टाइप है ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम, वो जनरल जहाँ पे लोड स्पीड व्हीकल्स यूज़ करते हैं, आपकी मोपेड या फिर मोटरसाइकिल, वहाँ पर होता है। जो भी ड्रम ब्रेक सिस्टम है आपका लेस एक्सपेंसिव है कि उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ नहीं किया गया है। और जो डिस्क ब्रेक सिस्टम है ये आपके जनरली कार्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो हाई स्पीड से चलती है। उसके बाद ये जो सिस्टम है ये आपकी एक्सपेंसिव सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करना पड़ेंगे। हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स आएंगे, उसी का आपका इस पर खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो मास्टर सिलेंडर होते हैं, ब्रेकिंग के पैड्स होते हैं अलग, इसमें फ्लूइड भरा हुआ आता है, एक मास्टर सिलेंडर होता है, ओके ना। तो दैट्स वाई इट इज़ इंक्रीज्ड बाय द cost, okay, it is expensive as compared to the drum braking system। So here we are starting our actually started we are second unit, that is safety system। in that we are looking into the braking system। आज हमने देखा उसके ब्रेकिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होता है, उसका नेसेसिटी क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि उसका एक क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। उस क्लासिफिकेशन के पहले दो टाइप हमने देख लिए, एक देखा ड्रम ब्रेक और दूसरा देखा डिस्क ब्रेक। तो आज के लेक्चर के बारे में आपको कोई भी डाउट्स हुआ तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो।